See, in last lecture we studied about power and authority. तो वेबर डिस्टिंग्विश करते हैं पावर और अथॉरिटी के बीच में, राइट? सो वेबर सेड पावर is the ability of an individual or a group of individuals to impose their own will in a social action situation, right? Even against the wishes and resistance of others, right? तो अगर आप सोशल एक्शन सिचुएशन में अपना खुद का विल, आप क्या चाहते हो वो इम्पोज कर पाते हो दूसरों पे, तो वेबर बोलते हैं कि दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू पोजेस पावर, राइट? You make other do things that you want, right? You give them command, you give them order. This is power. It means that you possess power over these other people, right? So there is an inequality between the people who possess power and the people who are subjected to it, right? So this inequality, the dimension of this inequality is defined in terms of power, right? तो वो he is a little different from Marx, right? तो मार्क्स इनइक्वालिटी को मोनोलिथिक वे में देखते हैं और इनइक्वालिटी को ही स्टडीज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, whereas Weber is studying inequality in multiple dimensions, in multiple terms, right? So he is appreciating the diversity of inequality, right? So he is studying inequality in power based terms. वो क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी की भी बात करते हैं, वो स्टेटस बेस्ड इनइक्वालिटी की बात भी करते हैं, राइट? सो दिस ट्राइनिटेरियन मॉडल विल बी स्टडिंग इट when I'll be talking about Weberian's theory of stratification, wherein it talks about class, status and power and party, right? So authority is the legitimate form of power, right? This is the difference between power and authority. When people who are subjected to power, they accept the commands of the person who is giving those commands or order, they accept it voluntarily, they do not resist it, right? Or they do not revolt, at least they do not revolt against it, right? So they are accepting power, they are accepting authority. So power legitimacy कब gain करता है? तब वो power is converted into authority. So power की दो dimensions है. One is when you exercise power without the cooperation or willingness or voluntariness of others, when others don't accept your power, तो आप अपनी पावर को वहाँ पे इम्पोज करते हैं थ्रू ब्रूट और नेकेड फोर्स और वायलेंस, राइट? दिस इज व्हाट वाज प्रेवलेंट इन स्लेवरी, राइट? इन ब्रिटिश टाइम्स ऑल्सो व्हेन इंडियंस वर सब्जेक्टेड टू पावर विदाउट देयर विलिंगनेस, राइट? तो इसलिए उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? स्वराज का, सेल्फ रूल, हम खुद पे ही रूल करेंगे, राइट? सो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, right? These are the very concepts are given. So they rejected this brute force of power, naked use of power, that Britishers were deliberately pushing the power down the throats of Indian masses. So it was not willingness, वहाँ पे readiness और acceptance नहीं थी, right? अगर आपकी पावर को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, आपको सस्टेनेबल यूज़ करना है, देन यू मेक अदर कंप्लाई टू इट, राइट? तो उसमें आपको लेजिटिमेसी गेन करनी पड़ेगी. यू हैव टू गेन द बिलीफ एंड फेथ ऑफ दोज हु आर सब्जेक्टेड टू पावर दैट दिस पावर इज डन और एक्सरसाइज्ड in a mutually beneficial way, right? So it is also benefiting us. So at least therefore they have the followers or the people who are subjected to power, they have belief, right? They have faith in the person who is exercising power. तो वहाँ से जो पावर है that is converted into authority, legitimacy gain होती है. तो हमने देखा था कि authority legitimacy कैसे gain होती है. वेबर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि why do certain people possess power? उनके पास authority कहाँ से आई है, right? What are the sources of authority? And second question is he asks is why do other people are complying to this authority, right? तो इसको करने के लिए उन्होंने बोला कि देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पावर वेयर पीपल रेडिली कंप्लाई टू द पर्सन हु इज पोजेसिंग दैट पावर, राइट? दे आर रेडिली कंप्लाइंग टू हिज कमांड्स, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, राइट? तो हमने देखा था कि अथॉरिटी को लेजिटिमेसी, पावर को लेजिटिमेसी जब मिलती है
राइट। तो ये जो अथॉरिटी जो बनती है, ये फर्दर 3 सोर्सेज हो सकते हैं, इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इन दिस लेक्चर आई विल स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट करिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट। सो दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूछे गए हैं पहले भी, एंड दे फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट 10 मार्कर्स, राइट। दे कुड बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 मार्क्स. Specifically they'll be asking about charismatic authority or legal rational authority, then I think it will be a 10 marker, right? So now let us start with charismatic authority. Charismatic authority. इसमें वेबर क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं कि certain people possess authority, राइट। कुछ लोगों के पास अथॉरिटी इसीलिए है राइट, because the people who are subjected to this authority, right, the people who are subjected to authority, right, they have belief, right, they have belief and faith, right। तो कुछ लोग इसलिए अथॉरिटी पोजेस करते हैं क्योंकि दोज हु आर सब्जेक्टेड टू पावर और आर सब्जेक्टेड टू दिस अथॉरिटी, दे हैव डीप बिलीफ एंड डीप फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ देयर लीडर हु इज एक्सरसाइजिंग दिस अथॉरिटी, राइट। तो ये जो फॉलोअर्स हैं, ये क्या समझते हैं, इनका क्या नोशन है, इनके क्या बिलीफ सिस्टम है, इनकी क्या फेथ है, दे हैव डीप बिलीफ एंड डीप फेथ इन द कैपेबिलिटीज ऑफ देयर लीडर, राइट। तो वो इनका बिलीफ ये है कि जो उनका लीडर क्या है, करिस्मेटिक है, राइट। उसकी क्या है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, राइट, या उसका खुद एक ओरा ऐसा है, उसकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, या फिर ही पोजेसेस अ डिवाइन ओरा और डिवाइन एट्रीब्यूट्स, राइट। उसको वो समझते हैं कि दिस पर्सन हैज सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, सुपर ह्यूमन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, राइट, ठीक है। तो ये जो लीडर है उनका और ये जो उनके फॉलोअर्स हैं, राइट, दीज आर द फॉलोअर्स, राइट। नाउ दीज फॉलोअर्स दे बिलीव, ये जो फॉलोअर्स हैं ये बिलीव रखते हैं कि उनका ये जो लीडर है, राइट, इनके पास क्या है, दिस लीडर ही हैज डिवाइन एट्रीब्यूट्स, राइट। वो क्या है, डिवाइन ओरा रेडिएट करते हैं अपने आप से, राइट। ही पोजेस सुपर ह्यूमन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, राइट। ही पोजेस गॉड लाइक क्वालिटीज। उनके अंदर क्या है, एक करिस्मेटिक और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है उनकी, राइट। तो वह ही पोजेस समथिंग विच इज नोन एज करिश्मा, right? So these people, they believe that this person has these qualities, right? So और ये क्या है, काफी डीप बिलीफ है और इनका डीप फेथ है और डीप कमिटमेंट है, राइट, डीप कमिटमेंट है, राइट। सो
इसीलिए क्या है, दे दीज पीपल, राइट, दे आर पुटिंग दिस पर्सन ऑन अ हायर पेडेस्टल, राइट, दे आर पुटिंग दिस पर्सन ऑन अ हायर पेडेस्टल, राइट। उनको क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एक करिस्मेटिक लीडर के हिसाब से देखते हैं, एंड दैट इज वाई क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर बिलीफ दिस पर्सन इज पोजेसिंग दिस ऑथोरिटी, राइट, because he has so much influence over, right, so much hold over these people or the followers, right, so these people kya hai, this person enjoys authority and these people who are subjected to this authority, right, they readily comply with right commands or orders of their charismatic leader, right, charismatic leader, right। तो ये लोग इनकी बात इसलिए मान रहे हैं, इनकी कमांड इसलिए मान रहे हैं, इनका ऑर्डर्स इसलिए मान रहे हैं बिकॉज वो इनकी क्षमता में, इनकी कैपेबिलिटीज में बिलीव रखते हैं। इनफैक्ट दे बिलीव दिस पर्सन हैज सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, right, he possess divine aura which is radiated out of him, right, or he possess divine attributes, and that is why they have deep faith and deep belief in him, and they readily comply with the commands or order their charismatic leader। See, वेबर बोलते हैं कि it does not matter whether this person possess these capabilities in reality or not, right, what matters is the belief of these people, right, is the belief of these people, they have deep belief, deep faith, right, and this deep belief and deep faith in the capabilities of this charismatic leader, this is the source of authority, right, यहीं से इस पर्सन में authority आती है, because these people are providing the authority to him। तो यहाँ पे authority क्या है, बॉटम अप मैनर में क्या है, फॉलोअर्स क्या है, और दोज वर सब्जेक्टेड टू अथॉरिटी, दे आर giving this authority to a certain person because they believe in him, right, it does not matter whether this person actually possess these capabilities or not, right, what matters is their belief and faith of these people, because this belief and faith is the source of this authority, right, ठीक है। now see, ये जो लीडर है, वेबर बोलते हैं कि इनिशियली जब वेबर बात कर रहे थे इन लीडर के बारे में, करिस्मेटिक ऑथोरिटी के बारे में, तो असेंशली व्हेन ही वाज फॉर्मुलेटिंग हिज थियरी, राइट, ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिलीजियस लीडर्स, राइट, रिलीजियस लीडर्स की बात कर रहे थे जो दिस करिस्मेटिक पर्सनैलिटी क्या है, पोजेस करते थे, राइट। तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, right, he is talking about Jesus, right, he is talking about Moses, ठीक है। और अगर आप लोगों ने गाइड मूवी देखी हो, राइट, देवानंद की, राइट, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें यही दिखाया गया है कि जो देवानंद होते हैं, पूरी स्टोरी ऐसे अनफोल्ड होती है कि सम इवेंट्स अनफोल्ड विद इन द मूवी ड्यू टू विच देवानंद हैज़ टू गो टू जेल, राइट, और वो जब जेल से निकलते हैं तो ही वॉज नॉट रेडी टू गो बैक टू हिज होम टाउन, हिज होम सिटी, राइट, बिकॉज वो यही सोचते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे, राइट, how his mother will be thinking of him, right, so he does not want to go to that place, right, तो वो क्या है, किसी दूसरी प्लेस जाते हैं, he has no food to eat, right, तो वो क्या है, मंदिर में क्या है, he was found in some very worse conditions, right, in the condition of hunger and starvation in a temple, right, तो कुछ योगी बैठे होते हैं, right, उनके पास सैफरन कलर के कपड़े होते हैं या फिर चद्दर होती है, और वो क्या है, उसके ऊपर क्या है, चद्दर से उन्हें क्या है, देवानंद को क्या है, वो बिछा देते चद्दर उनके ऊपर, और फिर वो दिस योगीज वेंट अवे। तो फिर जो गांव वाले आते हैं तो उनको लगता है कि ही इज सम बिग करिस्मेटिक लीडर, राइट,
saffron clad leader, or he is a big saint, right, big साधु. और फिर essentially क्या है, because that देवानंद is a smart person, right, उस मूवी में he is a smart person, right. तो essentially क्या है, लोग हैं उनकी कैपेबिलिटीज में बिलीव करने लग जाते हैं, और essentially he emerges as a this charismatic leader of these people, right. तो अगर he gives some order, command, direction to these people are more than willing to accept the authority of this person, right. तो source of authority are these people, right, whether that person possesses these capabilities or not, right. तो हम क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स में भी क्या है, लोग अपना करिस्मेटिक पर्सनैलिटी देखते हैं, और इसीलिए उनकी क्या है, दीज पॉलिटिकल लीडर्स आर, इतने सारे लोगों को मोबिलाइज, उनकी मास फॉलोइंग किस लिए होती है, राइट, बिकॉज दे हैव दिस करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, राइट. सो हेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, राइट. He was a charismatic leader who challenged the British authority, right, who had a mass following, right. People believed in him, that is why they were ready to sacrifice their lives as per his directions. वो देते ना 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, डू और डाई, और काफ़ी सारी इंडियन पॉपुलेशन जो मासेस हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, राइट, बिकॉज दे बिलीव्ड इन द कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन, राइट. सिमिलरली नेल्सन मंडेला, राइट, तो जिन्होंने क्या है, अपार्थाइड और रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ क्या है, प्रोटेस्ट किया था, राइट. ही वाज अनदर करिस्मेटिक लीडर. देन विंस्टन चर्चिल, राइट. चर्चिल को लोग क्या है, स्पेशली द ब्रिटिश, उसको करिस्मेटिक लीडर समझते हैं, बिकॉज ही गाइडेड देम सक्सेसफुली ड्यूरिंग द टफ टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन हिटलर almost annexed the entire of Europe, right. Only UK जो था वो रिमेनिंग था, रशिया रिमेनिंग था, और जो वो यूके पे क्या है, दीज जर्मन प्लेन्स दे स्टार्टेड बोम्बार्डिंग द यूके सिटीज. सो इन दोज टाइम्स क्या है, विंस्टन चर्चिल ही प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द ब्रिटिश पीपल, एंड दैट इज वाई ही इज रिगार्डेड एज द करिस्मेटिक लीडर. लेकिन इंडिया में ही विंस्टन चर्चिल को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के दौरान ब्रिटिश रूल में काफ़ी फेमाइंस हुए थे, इंडियन में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, फेमाइंस हुए थे, राइट. लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डाइंग ड्यू टू द पॉलिसीज, ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, एंड ही वॉज अ कंजर्वेटिव, अ स्ट्रॉन्ग लीडर. और इसको कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट पीपल आर व्यूइंग दिस पर्सन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट. तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या है, पावरफुल लीडर समझते हैं, करिस्मेटिक लीडर समझते हैं, जो करिश्मा और ओरा पोजेस करते हैं, राइट. राइट. सिमिलरली मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने क्या है, सिविल राइट्स मूवमेंट को क्या है, शोल्डर किया था in US, right. These are considered as charismatic leaders. Now if you want to talk about warriors, right, warriors में क्या है, काफ़ी warriors ऐसे जिनको charismatic माना जाता है, right. For example छत्रपति शिवाजी, right. छत्रपति शिवाजी is considered as a charismatic leader, right, as a divine leader, right, who possessed charisma, that magnetic personality, that aura, right. These people, they believed in him, right. ठीक है. सो दीज पर्सन आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट. सो दे आर बियॉन्ड ऑर्डिनरी, वी कैन से, राइट. यहां पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि वेदर दे आर ऑर्डिनरी और नॉट. एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज दीज पीपल, दे हैव फेथ और दे बिलीव कि दीज पीपल, कि दिस लीडर इज ऑर्डिनरी, राइट. वहीं से ऑथोरिटी का कंप्लायंस और सोर्स होता है, राइट. तो यहां पे क्या है, they have to perform extraordinary acts or miracles, right. They have to perform extraordinary acts or miracles, right. ताकि इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, फेथ है, बिलीफ है, राइट, वो क्या है, करिस्मेटिक लीडर में बना रहे, राइट. तो ये जो मिरेकल्स अगर आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में क्या है, ये क्या है, रिलीजन में क्या करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्या है, उनको क्या है, मिरेकल्स करते हुए दिखाया गया है, राइट. हु कैन कन्वर्ट वाटर इनटू वाइन,
right? So I am giving you this example so as to make you understand, right? Water into mine और क्या है, राइट? बहुत सारे मिरेकल्स करते हुए क्या है उनकी लाइफ में उनको दिखाया गया है, राइट? हु कैन put life into the dead people, right? So these are the various miracles. Even in other religions, the tall charismatic leaders, they are believed to possess this kind of magnetic personality or aura. They can perform miracles, they can perform extraordinary acts, right? और ये जो leaders हैं, even these are performing extraordinary acts which you can consider miracles, which an ordinary human being cannot do, right? Winston Churchill did it during the Second World War. Nelson Mandela did it. Gandhi did it. Martin Luther King did it, right? So they have to perform these extraordinary acts in order to continue enjoying the confidence of their followers, right? ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम ये बोल सकते हैं कि these leaders, करिश्मा क्या है? ये जो करिश्मेटिक लीडर है, राइट? और वेबर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये जो करिश्मा है, ये तो जो करिश्मा है लीडर के पास, इट इज अ रिवोल्यूशनरी फोर्स। ये एक रिवोल्यूशनरी फोर्स है, राइट? एंड दिस रिवोल्यूशनरी फोर्स, ये करिश्मेटिक अथॉरिटी और उनके लीडर्स क्या हैं? दे कैन ब्रिंग इन रिवोल्यूशनरी, लार्ज स्केल रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज लेके आ सकते हैं वो, राइट? ठीक है, तो अगेन मैं सोशल एक्शन सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, राइट? लार्ज स्केल रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज लेके आ सकते हैं रिवोल्यूशनरी फोर्स करिश्मा, राइट? और वो बोलते हैं कि जो करिश्मेटिक लीडर है और उनके फॉलोअर्स है, और ये जो करिश्मा है ये इतना स्ट्रांग होगा, इट कुड चैलेंज द एग्जिस्टिंग authority structures और relations, राइट? तो वेबर बोलते हैं कि जो करिश्मेटिक अथॉरिटी है, इट इज अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट? बिकॉज ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज कंजर्वेटिव और इट इज ओल्ड। और ये जो करिश्मेटिक लीडर है, राइट, जिसमें क्या है? डायनामिक पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सनैलिटी है, राइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक फ्रेशनेस है उसमें, राइट? फ्रेशनेस है। सो दे कैन चैलेंज द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, रिलेशंस, हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ सोसाइटी इज फंक्शनिंग, राइट? सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी रिलेशंस क्या कैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको चैलेंज कर सकते हैं। और क्या है उसको, क्या है? दे कैन चैलेंज एंड दे कैन ऑल्टर एंड डिस्ट्रॉय दीज स्ट्रक्चर्स। सो by challenging the existing status quo, right? Status quo, they are challenging this existing status quo or existing social political और इकोनॉमिक कंडीशंस, इनको चैलेंज करते हैं वो, स्टेटस क्वाइज्म को चैलेंज करते हैं। और एग्जिस्टिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, कैसे पावर रिलेशंस ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में, उसको चैलेंज करते हैं और दे कुड डिस्ट्रॉय दी स्ट्रक्चर्स, राइट? तो वो खाली ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं, इवन लीगल रैशनल अथॉरिटी को भी क्या है? चैलेंज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने इसका आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मोहब्बतें में है, द पैट्रियार्क, अमिताभ बच्चन वाज ए टिपिकल पैट्रियार्क एंजॉइंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट? तो तभी वो किस पे फोकस करते हैं? परंपरा पे, दिस ओल्ड ट्रेडिशंस यू हैव टू फॉलो, राइट? और वही क्या ट्रेडिशनल अथॉरिटी की वजह से क्या ही पोजेसेस पावर एंड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? और
punishments are extended to them if they go beyond these traditional notions, right? These traditional structures, these traditional authority relations, or if they violate the traditional actions, right? तो इसी में इमर्ज होके आते हैं करिश्मेटिक यंग लीडर का, शाहरुख खान का, right? Who mobilize these people, right? These students, and he asked them to revolt against this patriarch, right? So these here Shahrukh Khan is portrayed as a charismatic young leader, and these students they believe in his capability. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे ही क्या है, जब रिलीजन्स भी आए थे, जैसे प्रॉफिट आए थे जब, राइट, तो उन्होंने लोग उन करिश्मा बिलीव रखते कि दैट पर्सन पोजेसेस करिश्मा, राइट, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, दे बिलीव्ड इन हिम, राइट, एंड ही मोबिलाइज द पीपल, राइट, एंड दिस पीपल दे चैलेंज द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल, उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर थे, एग्जिस्टिंग जो उस टाइम के जो प्रिमिटिव रिलीजन्स थे, राइट, उनको चैलेंज करके, राइट, उसको ओवरथ्रो किया, ठीक है। तो दीज विल कंटिन्यूसली हैपन कि कुछ करिश्मेटिक लीडर आएगा, जैसे चीजें हो रही हैं उनको चैलेंज किया जाएगा, और वहां से क्या है ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगा। दे कैन इवन क्वेश्चन लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट, दे कैन इवन क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। नाउ जब ये मार्टिन लूथर किंग सिविल राइट्स की बात करते हैं, वो क्या है ट्रेडिशनल अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हैं और लीगल रैशनल अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हैं, बिकॉज दैट ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाज लेजिटिमाइज्ड यूजिंग लॉज, राइट। आपने देखा उस टाइम पे काफ़ी ऐसे लॉज पास किए हुए थे यूएस में विच वर आउटराइटली डिस्क्रिमिनेटरी, राइट, और डिस्क्रिमिनेशन क्या परपेचुएट कर रहे थे, वेर इन द ब्लैक वर बिंग सब्जुगेटेड और सब्जेक्टेड, राइट। नेल्सन मंडेला ने भी जब क्या किया था, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड में भी क्या होता, सब लॉज को चैलेंज किया था, राइट, जहाँ पे उनके सेपरेट हाउसेज होंगे, गेटो होंगे ब्लैक्स के, राइट, प्लस ब्लैक्स जो थे वो अथॉरिटी जो स्ट्रक्चर्स था, राइट, पावरफुल गवर्नमेंट पोजीशंस थे उनको ऑक्यूपाई नहीं करते थे, राइट, तो वहाँ से भी क्या है अथॉरिटी में नहीं थे, पावर में नहीं थे, वहाँ से भी उनका ऑपरेशन और इनइक्वालिटी आ रही थी, राइट। तीसरी चीज़ हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे ट्रेन्स वगैरह में वो ट्रैवल करते थे तो उनको सेपरेट ट्रैवल करना पड़ता था, राइट, प्लस दे कुड नॉट वेंचर आउट ऑफ देयर होम्स आफ्टर, राइट, एट नाइट टाइम्स, राइट, बिकॉज ये बिलीव किया जाता था कि ब्लैक क्रेस क्या है वो बेसिकली ओरिजिनेटर ऑफ क्राइम है, राइट, तो उनको रात में नहीं निकलने देंगे क्योंकि इससे क्या है जो वाइट्स है उनकी सेफ्टी पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो वेरियस काइंड ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर देयर। तो लीगल रैशनल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी दोनों को चैलेंज कर सकती है। सो दैट इज वाई इट इज अ करिश्मेटिक फोर्स, इट इज अ रेवोल्यूशनरी फोर्स, इट चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशंस, alters or destroy these structures, right? So they can bring in large scale social change, they can challenge the status quoism and existing social, political and economic conditions, right? तो हमने देखा था कि जैसे अब ये कैसे चैलेंज करते हैं, राइट, बिकॉज ये जो लीडर है, राइट, दिस लीडर, राइट, थ्रू हिज एक्ट्स और स्पीच और वर्क्स, राइट, ही कुड चेंज, राइट, ये क्या है, ही कुड चेंज द subjective minds or states of people, right, he could change the subjective minds of people, right, influence कर सकते हैं उनके minds को through their speeches, through their acts, right, in a social action situation, right, they could inspire and influence these followers, right, because these followers also believe in their charismatic authority, right, so they could change how these people think, right, so they could change the subjective minds of the people, right. तो क्या है, this is what they are doing through their ideology, they are promulgating certain ideas, principles, notions, what they believe, think, right. So they, when this is inculcated into the minds of these followers, they are changing the subjective minds or subjective states, right, उनके motives, attitudes और इन वो क्या है mindset change कर देते हैं, right. तो यहाँ से क्या है नए meanings और motives आते हैं, right. These people can have new meanings and motives, तो these meanings and motives can in turn shape their action, right. अगर हम बिल्कुल नीचे लेवल पे जाके देखेंगे कि this person through speech, through his acts, through promulgation of various ideologies, he is changing the subjective states of minds of these followers, right, he is influencing these followers, right. तो यहाँ पे क्या है वो क्या है अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू क्या है इनके माइंड्स को अफेक्ट करते हैं
और दीज पीपल क्या है, इनका माइंड सेट इन्फ्लुएंस होता है, इनका एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट, इनका माइंड सेट इन्फ्लुएंस होता है, इनके वर्ल्ड व्यू इन्फ्लुएंस होता है, हाउ दे सी और परसीव द वर्ल्ड, इनके एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या है, उनका नए मोटिव्स और मीनिंग्स निकल के आते हैं, दीज मोटिव्स और मीनिंग्स विल शेप देयर एक्शन, राइट। सो दीज पीपल दे कैन मोबिलाइज, दे हैव द पावर टू मोबिलाइज द फॉलोअर्स और मासेस, राइट। और इनको क्या है करके क्या है, दे विल ब्रिंग इन द रिवोल्यूशन टू चेंज द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल ऑथोरिटी स्ट्रक्चर्स, राइट। प्लस हमने देखा था कि ये जो ऑर्डिनरी है, बियॉन्ड ऑर्डिनरी मतलब ये क्या है, ये राइज कैसे करते हैं करिस्मेटिक लीडर्स, दे मेनली राइज इन क्राइसिस सिचुएशंस, राइट, दे मेनली राइज इन क्राइसिस सिचुएशंस, राइट, एंड दे प्रोवाइड लीडरशिप इन दीज सिचुएशंस, charismatic leadership in these situations, right, and if they are continuously able to guide the people who are subjected to their authority in these tough times or in these crisis situations, right, so through their guide it means they have to continuously win the confidence of these people by continuously guiding them through these crisis situations and by continuously performing extraordinary acts or miracles, right। तो वो क्या है, क्राइसिस सिचुएशंस में लोगों क्या है उनके साथ डील करते हैं। और हमने देखा भी था, राइट, गांधी क्या बोलते हैं, डू और डाई, करो या मरो, राइट, चैलेंज कर रहे हैं, राइट, इनको सभी को मोबिलाइज कर रहे हैं क्राइसिस सिचुएशंस में, व्हेन पीपल वर अंडर ब्रिटिश रूल्स, राइट, वहाँ पे पॉवर्टी, हंगर और स्टारवेशन था, फार्मर्स, आर्टिजन्स, सबकी कंडीशंस बहुत बुरी थी, राइट। उस टाइम्स में क्या, क्राइसिस सिचुएशंस में गांधी एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर इमर्ज करके आए और ही मोबिलाइज दीज पीपल एंड on his one command these people they are ready to either do or either die, but they even if they have to sacrifice their life in the service of that protest, in the service of that revolution, right, so वो क्या है, collective action के थ्रू क्या है, revolution ला सकते हैं, mobilize करके लोगों को protest मूवमेंट, सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स क्या है, गांधी जी की एक कमांड पे क्या है, ऑल दिस पीपल्स वर मोबिलाइज्ड, राइट, बिकॉज दिस पीपल बिलीव्ड इन द करिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ गांधी, राइट। सेम गोज फॉर ऑल दिस लीडर्स, छत्रपति शिवाजी, ये भी क्राइसिस सिचुएशन में इनका जन्म हुआ था, जब लोकल लैंड लॉर्ड्स क्या है, मराठवाड़ा रीजन्स में क्या है, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत पुअर कंडीशंस थी फार्मर्स की, राइट, कोई उनकी सुध बुध नहीं लेता था, राइट, दे वर लिविंग इन मिजरी, पॉवर्टी एंड हंगर, एंड दीज लैंडलॉर्ड्स दे वर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेटिव। तो उस टाइम के दौरान उनका राइज हुआ, राइट, एंड ही चैलेंज दीज एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, राइट। सिमिलर सेम गोज फॉर चर्चिल। सी आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट वन अदर पर्सन, हिटलर। अगर आप हिटलर का देखो राइज, हिटलर का आप राइज देखते हो तो वो भी इमर्ज होके आए थे क्राइसिस सिचुएशन में, राइट। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ह्यूज वॉर रिपेरेशंस और वॉर डैमेजेस लगाए गए थे जर्मनी पे। दे हैव टू पे ह्यूज सम्स और अमाउंट ऑफ मनी टू द विनिंग कंट्रीज, राइट। जो भी इन विनिंग कंट्रीज वो बोलते हैं कि हमें इतना डैमेज हुआ है वॉर में, एंड दिस जर्मनी हैज़ टू पे बैक, और काफ़ी ज़्यादा था। प्लस जर्मनी को क्या है, आप बोल सकते हो कि उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस है, राइट, दे वर डिसबैंडेड, राइट, दे वर नॉट अलाउड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एयरफोर्स। उनकी आर्मी को बहुत लिमिट कर दिया गया, उनसे उनका इलाके छीन लिए गए, राइनलैंड वगैरह, राइट। प्लस जो लीडर्स वहाँ पे गए थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, जब ये संधि हो रही थी, तो दीज जर्मन लीडर्स वर दे वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, राइट। उनको विद अटमोस्ट डिसरिस्पेक्ट दे वर ट्रीटेड, सो इट हर्ट द नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द जर्मन्स, राइट। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि ये इतनी बुरी कंडीशंस थी कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी जर्मनी में, रिसेशन के दौरान और ज़्यादा बढ़ गई थी वो हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। जर्मन करेंसी पूरी डिटेरियोरेट कर गई थी, और ऐसा बोला जाता है कि वो करेंसी से बेटर क्या है, टॉयलेट पेपर था, राइट।
राइट। सो ऐसा था मतलब कि उसकी जो वैल्यू है बिल्कुल डिटीरियोरेट कर गई थी। तो इन क्राइसिस सिचुएशंस में राइज हुआ था हिटलर का, और हिटलर ने कुछ प्रोमिसेस की लोगों को, राइट, कुछ अपनी स्पीचेस ऐसी दी और कुछ ऐसी प्रोमिसेस की जिससे लोगों को लगा कि दिस पर्सन कैन चेंज देयर एग्जिस्टिंग कंडीशंस, राइट। तो ये जो लीडर्स एमर्ज होकर आते हैं ऐसी सिचुएशन, उनको मसीहा क्यों बोलते हैं, राइट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंडीशंस को क्या है, चेंज कर सकते हैं वो, राइट। सो हिटलर जब आए तो उन्होंने कंस्क्रिप्शन भी की, राइट, सभी को क्या है मिलिट्री में आना था, राइट, वो कंपलसरी थी, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। सो हिटलर टू एन एक्सटेंट चेंज द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, राइट। रिसेशन से बाहर निकाल के लेके आए थे वो जर्मनी को, जर्मन स्ट्रेंथ को रिबिल्ड किया था। और जिस टाइम पे हिटलर के टाइम पे क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट का जर्मनी का, तो बहुत जबरदस्त साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा था। जर्मनी वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ देयर टाइम्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, राइट। द टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो irrespective of the negative aspects of the horrible aspects of I would say Hitler's leadership, the Germans, right, that is the non-Jewish people actually believed in him, right. He emerged as Messiah in that time. तो उनको भी क्या है उस टाइम पे जर्मन्स क्या है करिस्मेटिक लीडर मानते थे, राइट। तो दैट इज वाई सारी की सारी पावर हिटलर ने कंसंट्रेट क्यों कर लिया अपने अंदर, बिकॉज द पीपल बिलीव्ड इन हिम, और वो क्या है एज ए मसीहा राइज हो रहे थे, राइट, राइट, ठीक है। सो दे कैन चैलेंज द एग्जिस्टिंग नोशंस, राइट। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है करिस्मेटिक लीडर, राइट, इट इज वेपर बोलते हैं इसे टेम्पररी और शॉर्ट टर्म, इट इज टेम्पररी और शॉर्ट टर्म। ये कैसे? सी ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है सोसाइटी में, राइट, कंक्रीटाइज हो जाती है सोसाइटी में, वो हमेशा से क्या है फॉर जनरेशंस क्या है ट्रेडिशनल अथॉरिटी चली आती है, राइट। रीति रिवाज पहले से जिनके पास अथॉरिटी थी उन्हीं को अथॉरिटी दी गई है, राइट। तो वो क्या है लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है। सिमिलरली लीगल रैशनल अथॉरिटी भी क्या है इन द फॉर्म्स ऑफ लीगल लॉज रूल्स और थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है सोसाइटी में। लेकिन ये लीगल जो करिस्मेटिक अथॉरिटी है वो इसलिए बोलते हैं टेम्पररी और शॉर्ट टर्म है, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द लीडर, दिस करिस्मेटिक लीडर, दिस पर्सन, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि टेम्पररी और शॉर्ट टर्म क्या है, इसलिए है कि इट इज को टर्मिनस और को एक्सटेंसिव विद द लाइफ स्पैन ऑफ दिस करिस्मेटिक लीडर, राइट। तो जब तक ये रहेंगे, जब तक ये अथॉरिटी एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली अथॉरिटी क्या है करिस्मेटिक अथॉरिटी इनमें रिजाइड करती है, या फिर till he enjoys the confidence of the followers, till he enjoys the confidence of the followers। या तो जब तक करेंगे, राइट, जब तक कंटिन्यूसली मिराकल परफॉर्म करते रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्स करते रहे, एंड दे कंटिन्यूसली क्या लीडरशिप, अफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करते रहे क्राइसिस सिचुएशन में, तो लोगों क्या है विश्वास उन पे बना रहेगा, राइट। सो इट इज शॉर्ट टर्म, राइट। अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है लॉन्ग टर्म करने के लिए, वो देखेंगे। लेकिन जब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है लॉन्ग टर्म करने के लिए, तो हम बाय डेफिनेशन दैट डज नॉट रिमेन अ करिस्मेटिक अथॉरिटी एनीमोर, इट आइदर कन्वर्ट्स इनटू लीगल रैशनल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इट बिकम्स ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो हम देखेंगे वो कैसे होता है, राइट। सी गाइड मूवी में भी ऐसा ही हुआ था। देवानंद एक्चुअली क्या होता है, ऐसा होता है कि वो जब वह एक्चुअली कंक्रीटाइजेस हिज पोजीशन एज ए करिस्मेटिक लीडर, राइट, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं अपनी करिस्मेटिक लीडरशिप को लेके, क्या है तो ड्रॉथ आ जाता है उस टाइम पे उस रीजन में, एंड पीपल स्टार्टेड डाइंग ऑफ हंगर, पॉवर्टी एंड फैमाइन। तो वहाँ पे क्या है दिस पीपल दे आस्क देवानंद टू टेक अ लाइफ, टू टेक अ फास्ट अनटू डेथ, राइट, राइट। And through this fast unto death of this charismatic leader, God's will be bended and God will be forced to induce rain on earth, right? तो वो ऐसा होता है कि and then he has to take because it was the wishes। यहाँ पे क्या है प्रेशर करिस्मेटिक लीडर पे भी है, राइट, दिस पीपल के वजह से भी प्रेशर भी होता है, और फिर वो फास्ट अनटू डेथ रखते हैं। एसेंशियली होता है कि एसेंशियली देवानंद लास्ट में क्या ही डाइज, राइट, ड्यू टू दिस फास्ट अनटू डेथ, और जैसे उनकी डेथ होती है उसके बाद बारिश हो जाती है, राइट।
So this is what charismatic leadership is, right? So I'll be talking about another important aspect also. See, Weber बात करते हैं routinization of charisma, right? Routinization of charisma. राइट तो हमने देखा था कि जो करिश्मेटिक अथॉरिटी है, इट इज टेम्पररी, राइट, इट इज शॉर्ट टर्म. वो टेम्पररी है या शॉर्ट टर्म है, बिकॉज आइदर द लीडर हैज टू कंटिन्यूसली प्रूव हिज मेरिट्स, he has to continuously prove his continuously perform the extraordinary acts, और continuously उनको क्या है वो extraordinary और miracles perform करने पड़ेंगे. उसी से क्या है वो जो followers है उनका faith बना रहेगा उनकी leadership capabilities में, उनके charismatic aura में, और इसी वजह से क्या है वो enjoy करते रहेंगे. तो अगर as long as he continue performing these miracles और continually performing these लीडरशिप एक्ट्स और ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन क्या है वो करिश्मेटिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट्स करते रहे, तो दीज फॉलोअर्स दे विल बी हैविंग फेथ इन हिम, राइट. तो वंस दिस लीडर फेल्स टू परफॉर्म दिस मिरेकल्स, तो क्या है वो दिस जो कॉन्फिडेंस है उन फॉलोअर्स का वो चला जाएगा, और उसी की वजह से क्या होगा, उसी की वजह से क्या होगा कि वो अथॉरिटी सस्टेनेबल नहीं रहेगी, राइट. या फिर इसलिए भी शॉर्ट टर्म इनको बोला गया है, राइट, बिकॉज कि दिस अथॉरिटी is basically possessed in one single individual, right? It is not institutionalized in society, right? It is possessed by one single individual. So it is co-terminus or co-extensive with the lifespan of this individual. Now when this individual dies, the charismatic authority dies with him, right? अब वेपर बोलते हैं कि इस charismatic authority में क्या होता है, essentially क्या, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, this is the charismatic leader, right? फिर करिश्मेटिक लीडर को असिस्ट करने के लिए करिश्मेटिक लीडर के करीबी लोग होते हैं, उनका स्टाफ होता है, राइट. इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं करिश्मेटिक ब्यूरोक्रेसी और करिश्मेटिक स्टाफ, राइट. नाउ दीज पीपल दे पोजेस अथॉरिटी ओवर मासेस, राइट. यहाँ पे मासेस हैं, दीज आर ऑल द मासेस दैट आर देयर हु आर सब्जेक्टेड टू दिस अथॉरिटी. तो ये एक कम्युनिटी बनी हुई है इस लीडर की, राइट. ये पूरी की पूरी कम्युनिटी है लीडर की, राइट. एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीडर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीडर, राइट. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस करिश्मेटिक लीडर, ठीक है. अब सी वेबर क्या बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, इस अथॉरिटी को क्या है लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाना चाहती है, राइट. लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाना चाहती है, राइट. दैट इज दे वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस अथॉरिटी इन सोसाइटी, राइट. इंस्टीट्यूशनलाइज दिस अथॉरिटी इन सोसाइटी, या फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हम बोल सकते हैं करिश्मा, या इसको हम बोल सकते हैं रूटीनाइजेशन ऑफ करिश्मा, राइट. करिश्मा का रूटीनाइजेशन हो गया सोसाइटी में, राइट. अब ये जो है कैसे हो सकता है कि लीडर अपने बाद क्या है सक्सेसर हो, लीडर के भी सक्सेसर हो, राइट. लीडर के सक्सेसर हो, और ये जो सक्सेसर होगा इसके थ्रू क्या है कंटिन्यूसली सक्सेसर से इलेक्ट क्या है आगे जाते नॉमिनेट या इलेक्ट होते रहेंगे, और अल्टीमेटली क्या है ये करिश्मेटिक अथॉरिटी क्या है इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी सोसाइटी में, राइट. नाउ सक्सेसर को दो तीन तरीके से क्या है अपॉइंट किया जा सकता है. एक तो सक्सेसर को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द करिश्मेटिक लीडर, राइट. करिश्मेटिक लीडर क्या है खुद ही सक्सेसर को नॉमिनेट करके चला जाए, राइट. करिश्मेटिक लीडर खुद ही सक्सेसर को नॉमिनेट करके चला जाए, राइट. ही कुड नॉमिनेट द सक्सेसर फ्रॉम अमंग द स्टाफ, राइट. ये जो स्टाफ है ये इनके करीबी इसलिए हैं बिकॉज ये भी क्या है इनका करिश्मा शेयर करते हैं. दीज आर ऑल्सो दीज पीपल आर ऑल्सो बिलीव टू पोजेस some extraordinary qualities, right. Or in collectively these people are enjoying the authority over these
community of followers, right? So even they share this charisma with the charismatic leader, right? But he is the dominant person here, right? And these are just the people or the staff of this charismatic leader. जैसे गांधी जी भी चलते थे, उनका स्टाफ रहता था, काफ़ी लोग उनके साथ रहते थे, काफ़ी एसोसिएट्स थे उनके साथ. आपने पढ़ा भी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद में ही एक बहुत बड़े करिस्मेटिक लीडर थे, राइट? सो ही वाज द क्लोज एड और एसोसिएट ऑफ गांधी जी, राइट? तो या तो नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम अमंग द फॉलोअर्स, जैसे गांधी ने नॉमिनेट किया किसको, जवाहरलाल नेहरू को, राइट? नॉमिनेट कर सकते फ्रॉम अमंग द फॉलोअर्स. आई वुड से स्टाफ, even staff is followers also, right? From among the staff of this organization नॉमिनेट कर सकते हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है कि ब्लड लाइन के अलोंग, राइट? ब्लड लाइन के अलोंग सक्सेशन हो, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन हो. राइट? तो करिस्मेटिक लीडर के जो ब्लड लाइन होंगी, राइट, उनकी जो लीनियज होगी उसके अक्रॉस ही सक्सेशन हो, क्योंकि यही ब्लड क्या है उनके सन में फ्लो करेगा, डॉटर में फ्लो करेगा, और वो करिस्मेटिक अथॉरिटी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया. दिस इज व्हाट द रैशनल एज टू व्हाई दिस इज हैपनिंग. या तीसरा ऐसा हो सकता है कि जो स्टाफ है, दीज आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर देयर टू चूज द सक्सेसर. स्टाफ क्या है, अपने आप में से क्या है, इलेक्ट करके, अपने आप में से इलेक्ट करके एक लीडर सेलेक्ट करें, राइट? फोर्थ ये हो सकता है, कि जो करिस्मेटिक लीडर है वो कुछ डायरेक्शंस दे दे, राइट? ब्रॉड डायरेक्शंस दे जिससे ये पता चल जाए कि नेक्स्ट लीडर को कैसे ढूंढा जाएगा, राइट? और इन ब्रॉड डायरेक्शंस के बेसिस पे क्या है, स्टाफ विल सर्च फॉर अ पर्सन हु शेयर्स दिस करिस्मेटिक लीडर्स, हु पोजेस दिस करिस्मेटिक क्वालिटीज, राइट? उसकी सर्च में क्या स्टाफ जाता है, एंड दे सर्च फॉर दैट पर्सन, राइट? एंड they will continuously searching for that person till they are not able to discover such a person, right? और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है सी दलाई लामा में. जो करंट दलाई लामा है, राइट, ही इज डीम्ड एज अ करिस्मेटिक लीडर, राइट? जिनके पास करिस्मेटिक अथॉरिटी है, राइट? तिब्बतन बुद्धिस्ट के अलोंग क्या है, उनकी काफ़ी एक अथॉरिटी है, बिकॉज ऑल दिस फॉलोअर्स दे बिलीव इन हिम, राइट? तो दलाई लामा जो है अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो अपने सक्सेसर को लेके वो ऐसे ये है कि सेज प्रोबेबली द नेक्स्ट दलाई लामा कुड बी वुमन, राइट? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वंस दलाई लामा डाइज, आफ्टर दैट क्या है, दे विल सर्च फॉर द नेक्स्ट दलाई लामा एंड दिस स्टाफ माइट बी सर्चिंग फॉर अ वुमन, राइट? तो दलाई लामा ने काफ़ी सारी इसके बारे में चीज़ें बोली, राइट? तो दिस इज बेसिकली अ री इनकारनेशन. ये माना जाता है कि ये जो करिस्मेटिक लीडर है इनका री इनकारनेशन होगा, एंड वी हैव टू सर्च फॉर अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ हु पोजेस दिस क्वालिटीज, राइट? नाउ ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन वेरियस टाइम्स, राइट? आपको वेरियस सिचुएशंस में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी जो थे, राइट, ही वॉज ए करिस्मेटिक लीडर, करिस्मेटिक वॉरियर. तो उनके करिश्मा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ स्टेट. और नेक्स्ट जो किंग है और नेक्स्ट करिस्मेटिक लीडर का कैसे सक्सेशन होगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायनेस्टिक सक्सेशन, प्राइमोजेनिटर. ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, नॉमिनेट भी किया जा सकता है, राइट? नॉमिनेट भी किया जा सकता है. तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे जो प्रोफेट के जो सक्सेसर थे, राइट, प्रोफेट के जो सक्सेशन आएगी, नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था अमंग द स्टाफ ऑफ द प्रॉफिट, अमंग द क्लोज डिसाइपल्स ऑफ द प्रॉफिट, अमंग द क्लोज स्टूडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट और द क्लोज्ड स्टाफ ऑफ द प्रॉफिट हु शेयर्स द करिश्मा ऑफ द प्रॉफिट, राइट? तो यहीं से शिया और सुन्नी का यहीं से क्या है, सेक्ट इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था, ये जो स्टाफ इनके बीच में डिफरेंस था कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट प्रॉफिट. यही तो शिया और सुन्नी मर्ज हुआ, राइट? तो शियाज बिलीव रखते हैं
कि प्रॉफिट कह के गए थे कि उनका अली जो है, जो कि प्रॉफिट के सन इन लॉ थे, ही विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, राइट। वेयर एज सुन्नी ये बोलते हैं कि प्रॉफिट ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया था, दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज वर्ड्स, राइट, एंड वी हैव टू चूज द नेक्स्ट सक्सेसर, वी हैव टू चूज द नेक्स्ट सक्सेसर फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो ये यहाँ पे स्टाफ इलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, दे चोज अबू बकर, और कंटिन्यूसली इसके बाद क्या है, खलीफा क्या है, इट इज बीइंग कंटिन्यूसली इलेक्टेड, द नेक्स्ट इन लाइन, द नेक्स्ट इन सक्सेशन टू प्रॉफिट, राइट। तो ये क्या है, वेरियस वेज हैं जिसमें इस करिश्मेटिक अथॉरिटी को सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सी वंस यू हैव रूटीनाइज्ड करिश्मा इन सोसाइटी, नाउ करिश्मा क्या है, सी वंस यू रूटीनाइज इट वॉन्ट बी करिश्मा एनीमोर, राइट, बिकॉज रूटीनाइज्ड क्या है, इट इज रूटीन, इट इज रिपीटेटिव, राइट। वेयर करिश्मा क्या है, करिश्मा इज अ डायनेमिक फोर्स, इट इज अ डायनेमिक रिवोल्यूशनरी फोर्स, राइट। आप उसको कभी भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सोसाइटी में, रूटीनाइज नहीं कर सकते, बिकॉज रूटीन इज समथिंग विच इज रिपीटेटिव, वेयर एज दिस डायनेमिक रिवोल्यूशनरी फोर्स इज समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, right, it is beyond ordinary, right, whereas routine is something which is ordinary, so charisma cannot be institutionalized in society। तो यहाँ पे ये जो institutionalize करने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी में करिश्मा को, essentially क्या है, करिश्मेटिक अथॉरिटी जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज करोगे, इट विल आइदर कन्वर्ट इनटू लीगल रैशनल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इट वॉन्ट बी ए करिश्मेटिक अथॉरिटी एनी मोर। क्यों? क्योंकि आप देखो सी, जब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो इमर्ज हुए थे, ही वाज अ करिश्मेटिक वॉरियर, करिश्मेटिक लीडर थे, राइट। लेकिन उसके बाद जब बात की गई कि जो नेक्स्ट इन सक्सेशन होगा, और ये जो सक्सेशन होता रहेगा आगे, इट विल बी अ डायनेस्टिक सक्सेशन, इट विल बी बेस्ड ऑन ब्लड लाइन, राइट, ऑन बेसिस ऑफ लीनिएज, डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये जो करिश्मेटिक अथॉरिटी ये किस में कन्वर्ट होगी यहाँ पे, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशनल अथॉरिटी, राइट। तो यहाँ पे ये बंदा, जैसे यहाँ पे क्या है, दिस पर्सन इज बीइंग रेज्ड टू द थ्रोन, राइट, एंड ही बिलोंग्स टू द लिनेज ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो एसेंशियली यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन होगा, बिकॉज दिस हैज बिकम अ ट्रेडिशन, यही गद्दी पे बैठते हैं जो छत्रपति शिवाजी के जो सक्सेसर्स हैं, सो दिस हैज बिकम अ ट्रेडिशन, रीति रिवाज बन चुका है, सो इट इज अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दिस authority is reposed in this person due to traditions that were developed among the Maratha community, right? So this charismatic authority transformed into traditional authority, and similarly ये जो organization है, they could start ऐसा चार्टर बना देते हैं या कुछ ऐसा मैंडेट बना सकते हैं कि this organization will be performing as per the said charter, legal laws and rules laid down for this organization, so it could convert into legal rational authority as well। रामाकृष्ण मिशन जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, राइट, दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट। अब वेबर क्या बोलना चाह रहे हैं, सी वेबर ये बोलते हैं कि ये जो हमारा जो मैं अथॉरिटी को डिवाइड कर रहा हूं तीन टाइप्स में, ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल और करिश्मेटिक अथॉरिटी, राइट। ये जो तीन टाइप्स में डिवाइड की जा रही है इस अथॉरिटी को, दिस इज एन आइडियल टाइप, लेकिन एक्चुअल में मल्टीपल परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बिकॉज रियलिटी क्या है आपकी, इनफाइनाइट है, राइट। अगर आपकी रियलिटी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन में एक पर्सन में तीनों अथॉरिटी हो, ट्रेडिशनल भी हो, लीगल रैशनल भी हो और करिश्मेटिक अथॉरिटी भी हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा रूजवेल्ट का, राइट। रूजवेल्ट वाज कंसिडर्ड एज अ करिश्मेटिक प्रेसिडेंट इन अमेरिका, सॉरी, प्लस he was also selected on the basis of constitutional laws and rules, he was following constitutional laws and rules, right, democratically he was elected, right, so he was enjoying legal rational authority as well। और साथ साथ आप देखोगे वो 4 बार प्रेसिडेंट रहे। तो फर्स्ट सेकंड टर्म के बाद क्या है,
एक पैटर्न इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन का. ही विल बी गाइडिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन एज पर अ सर्टेन पैटर्न, राइट. तो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आ जाएंगे कि ये ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के. तो ये क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो जाएगी, राइट. ही विल बी डूइंग थिंग्स दैट ही डिड इन द पास्ट, तो कंटिन्यूटी रहेगी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी हो जाएगी. सो दीज आइडियल टाइप वी आर कंस्ट्रक्टिंग जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट. ये साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन वो इसके साथ एग्री करते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी ट्रेडिशनल सोसाइटी में ज़्यादा थी, करिस्मेटिक अथॉरिटी ट्रांजिटरी स्टेज, और फिर क्या मॉडर्न सोसाइटी में लीगल रैशनल अथॉरिटी होगी, राइट. और वो बोलते हैं करिस्मेटिक अथॉरिटी लीगल रैशनल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर पाएगी मॉडर्न सोसाइटीज़ में. हम पढ़ेंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का इमर्जेंस होगा और वो आयरन केज हो जाएगी, और ये आयरन और स्टील केज को क्या है, करिस्मेटिक अथॉरिटी में नहीं तोड़ सकती. इतना पावरफुल कंक्रीटाइजेशन हो जाएगा रैशनलाइजेशन का सोसाइटी में. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट. विल बी टेकिंग अ लुक इनटू इट एज वेल. नाउ सी व्हाई इज वेबर टॉकिंग अबाउट authority. See, his basic agenda is to compare this bureaucracy, right. ये अथॉरिटी कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको लीगल रैशनल अथॉरिटी के साथ कंपेयर किया जाए. और ये पहले हमने ट्रेडिशनल अथॉरिटी में भी किया था, और ये बोलना चाहते हैं कि करिस्मेटिक अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, इट इज inferior. The way in which this authority is organized, right, how this administration or this authority is exercised, this is way inferior to legal rational authority, right. और वो because he considers legal rational authority or bureaucracy to be the most efficient and superior form of organization of work. तो यहाँ पे ये जो लीडर है और इसका ये जो स्टाफ है, राइट, तो ये बोलते हैं कि इसमें कोई हिरार्की नहीं है, वेल डिफाइंड हिरार्की नहीं है जैसा ब्यूरोक्रेसी में होता है. प्लस दिस स्टाफ is not chosen on the basis of technical knowledge or competence, right. Basically वो staff इसलिए choose किया जाता है because this staff is loyal to the people or loyal to the leader, and this staff believes in the capability of the leader, right, not on the basis of technical competence, technical skills, typical skills that are required. तो technical knowledge और technical competence, technical skills क्या है, वो किस कंटेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे. जैसे आप कंसेप्चुअलाइज करते हो कि दिस इज टेक्निकल नॉलेज, दिस इज टेक्निकल कॉम्पिटेंस और दिस इज टेक्निकल स्किल्स, दिस इज नॉट वेवर मीन्स, राइट. ठीक है, हिरार्की नहीं है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस और टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होता स्टाफ का, राइट. और क्या है, आपका कुछ सेपरेशन नहीं है. जैसे ब्यूरोक्रेसी में सेपरेशन है प्राइवेट और ऑफिशियल का, राइट. आप ऑफिशियल रिसोर्सेज और ऑफिशियल अथॉरिटी को प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्लियर कट डिमार्केशन और सेपरेशन नहीं है ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, डिमार्केशन और सेपरेशन नहीं है, राइट. तो वो वेरियस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ हियरार्की, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सेपरेशन. प्लस ब्यूरोक्रेसी और लीगल रैशनल अथॉरिटी रूल्स और लॉज के हिसाब से होती है. यहाँ पे ऐसे कोई क्लियरली लेड डाउन रूल्स नहीं है, राइट. रूल्स आर डिजाइंड बाय द दिस पर्सनल मास्टर और करिस्मेटिक मास्टर. कोई ऐसे एज पर रूल्स भी नहीं है, राइट. रैशनल लीगल रूल्स नहीं है जिसकी वजह से ये ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज की गई हो. तो इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द मोर इन्फीरियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, इन्फीरियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे बनाई गई है यहाँ पे, एंड इट इज वे इन्फीरियर टू लीगल रैशनल अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट लीगल रैशनल अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी. सी नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट लीगल रैशनल अथॉरिटी, राइट. तो लीगल रैशनल अथॉरिटी है क्या, राइट. लीगल रैशनल अथॉरिटी, वेबर बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट सुपीरियर, हम तीनों अथॉरिटी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो लीगल रैशनल अथॉरिटी इट इज द मोस्ट सुपीरियर and most efficient form of organization of work, right. It is the most efficient form of organization of authority relations or authority structure in an organization, right. It is most superior and most efficient.
लीगल रैशनल अथॉरिटी क्यों है? एसेंशियली क्या है, वेबर बोलते हैं कि जो लॉज है या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या जो रूल्स हैं हमारे, राइट, दीज रिपोज, राइट, ये रिपोज करते हैं अथॉरिटी इन सर्टेन पोजीशंस और ऑफिसेस, राइट, दे रिटेन और दे क्रिएट सर्टेन ऑफिसेस और पोजीशंस, और इन ऑफिसेस और पोजीशंस में क्या है, अथॉरिटी रिपोज की जाती है, राइट. सो इट इज नॉट द इंडिविजुअल, it is not the individual that enjoys authority, right. authority कौन एंजॉय करता है? वो ऑफिस, वो पोजीशन, राइट. अगर आप कलेक्टर बनते हो, आईएएस क्या है? इट इज एन ऑफिस, इट इज अ पोजीशन. आप कौन हो वो मैटर नहीं करता है. एज एन इंडिविजुअल यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी. वंस यू एंटर दैट ऑफिस, तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्यूपाइंग दैट ऑफिस यू हैव दैट अथॉरिटी, यू हैव दैट पावर, राइट. तो अथॉरिटी और पावर किस में रिजाइड करती है? इट इज इन दैट ऑफिस क्रिएटेड. तो इसलिए क्या, आप एज एन इंडिविजुअल बिफोर एंटरिंग द ऑफिस यू डिड नॉट हैव एनी अथॉरिटी. इवन आफ्टर लिविंग द ऑफिस पोस्ट रिटायरमेंट यू वोंट बी हैविंग एनी अथॉरिटी. टिल द टाइम यू आर ऑन ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस हैविंग पावर और अथॉरिटी दैट इज कन्फर्ड इनटू इट बाय द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी, उसके बेसिस पे क्या अथॉरिटी ओरिजिन होती है, राइट. ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, राइट, हु विल बी ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिसेस, राइट, वो क्या है, लीगल क्राइटेरिया पे भी क्या है, सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, क्राइटेरिया और पैरामीटर्स और पहले से लेट डाउन है, राइट. सर्टेन पैरामीटर्स क्या है आप बोल सकते हो, वो पहले से ही दे आर बीइंग लेट डाउन एज पर दिस रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और रूल्स के हिसाब से, राइट. पहले सी पैरामीटर है. तो पीएम क्या है? पीएम इज अ पोस्ट, राइट. इट इज एन ऑफिस ऑफ पीएम बोलते हैं, राइट. पीएमओ, फिर सी दिस इज पीएम, फिर पीएम का जो स्टाफ रहेगा, राइट, वो पीएमओ बना देगा, राइट. पीएम प्राइम मिनिस्टर उस ऑफिस. तो पीएम क्या? इट इज एन ऑफिस, इट इज एन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. तो दीज पीपल इफ दे वांट टू ऑक्यूपाई द पोजिशन और ऑफिस ऑफ पीएम, राइट, तो उनको कुछ पैरामीटर्स और क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, राइट. उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा टू दिस, राइट. तो क्या क्राइटेरिया होगा? इंडिया में क्या है क्राइटेरिया? दैट यू हैव टू बी द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, राइट. या तो आप लीडर हो विनिंग पार्टी के, या फिर विनिंग पार्टी का ही लीडर डिसाइड करेगा दैट हु विल बी द पीएम. तो ये इसके पास है यहाँ पे पावर कि हु विल द पीएम, बिकॉज आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यू हैव बीन ड्यूली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट. तो आप क्या है, पीपल हैव इलेक्टेड यू, पीपल हैव पुट यू इन दिस पोजीशन एंड यू आर ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन एज पर दिस पैरामीटर्स और क्राइटेरिया दैट यू आर सेटिस्फाइड एज पर द लॉज, रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी. तो इसी वजह से आपकी अथॉरिटी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लीगल ग्राउंड्स एंड दैट इज वाई इट इज लीगल इन नेचर, राइट. ठीक है, राइट. और क्या है, या फिर अगर आप आईएएस वगैरह हो तो क्राइटेरिया क्या होगा कि यू हैव टू पास दिस यूपीएससी एग्जाम, राइट. सो दोनों में आप देखोगे तो नॉलेज, स्किल्स और कंपिटेंस के बेसिस पे, राइट. कंपिटेंस के बेसिस पे क्या है, लो क्या है, इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस. दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ, राइट. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो लोग हैं ऑथोरिटी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड दिस ऑथोरिटी इट लाइज विद इन द ऑफिस, राइट, नॉट द इंडिविजुअल. तो ये जो है ऑफिस, इसको भी एक्ट करना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो लीगल इन द सेंस दैट दिस ऑथोरिटी इज लीगल इन द सेंस दैट कि दे हैव टू वर्क एज पर सर्टेन रूल्स, राइट, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में ही रह के उनको काम करना पड़ेगा. डूज और डोंट्स में ही होंगे कुछ उनके ऑफिस में, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसके हिसाब से क्या है उसको इस एम्बिट में रह के काम करना पड़ेगा. सो दे विल बी एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी इन लीगल मैनर ऑल्सो, राइट. सो वो ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं इन द लीगल मैनर. ये ऑफिसेज क्रिएट किए गए हैं बाय लॉ एंड प्लस इट इज लीगल इन द सेंस दैट दे आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑथोरिटी एज पर द रूल्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन,
certain do's and don'ts of this office, certain codes of conduct of this office, right? ठीक है. अब the question is, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि why do certain people possess authority, ये हमने आंसर कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर इज कि why do other people are complying to it, right? Why do other people are complying to this authority, right? See, first वेबर बोलते हैं in legal rational authority you are complying to the authority of office. You are complying to the authority of office and not individual, right? तो आप उस कलेक्टर की बात मान रहे हैं, आप उस कांस्टेबल की बात मान रहे हैं, आप उस इनकम टैक्स कमिश्नर और आईआरएस की बात मान रहे हैं, आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल XYZ की बात नहीं मान रहे, आप उस ऑफिस जो है वो ऑफिस उसको इंडिविजुअल को पावर दे रहा है, आप उस ऑफिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट? नॉट द इंडिविजुअल. वहां पे उस ऑफिस में कोई भी इंडिविजुअल होगा, यू विल बी बिहेविंग इन द सेम मैनर, राइट? सो फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज, हमने देखा था कि देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, social contract. Now this is all these positions are created on the basis of किसका रूल है? एज पर रूल ऑफ लॉ, राइट? कानून रूल करेगा, रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, और इस लॉ के हिसाब से ही सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं, राइट? सारी पोजीशंस क्रिएट की जा रही है, सारे अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, सारे अथॉरिटी रिलेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं एज पर सर्टेन the rule of law. So there is a social contract, right? We the people of India, constitution, right? तो यहाँ पे हम एग्री कर चुके हैं कि we will be complying to this authority, right? ठीक है. Plus you are not complying to the individual, you are complying to the office, right? So it is formal in nature, right? तो ये कुछ ऐसा है, this is like this, right? These are office positions. Right? And these are the masses, the common person, आम आदमी, right? Right? So these positions they have been created as per rule of law, right? कानून के हिसाब से इनका ओरिजिनेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट? और हम ये जो रूल ऑफ लॉ है, इस ब्रॉड एम्बिट में क्या है, हम सारे पोजीशंस, ऑफिसेस एज वेल एज इंडिविजुअल, वी आर लिविंग विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ. इट इज दिस लॉ विच इज क्रिएटिंग. तो यहाँ पे राज किसका है? कानून का है. कानून के हिसाब से सबको फंक्शन करना पड़ेगा. ये आपस में हमारा सबका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. दैट इज वाई these people who are subjected to the authority of these offices are created by law, right? So they are legal, right? उनके पास they have legitimacy of authority, plus within this broad rule of law or ambit of law, कानून का राज है, right? There is rule of law, कानून का राज है, तो यार we all are complying to it, right? और इसमें authority किसको दी गई है? इस law ने दी है, and that is why since we are also living within the ambit of rule of law, we are also complying to this authority. और यहाँ पे क्या है, कोई भी इंडिविजुअल हो XYZ, एवरीवन विल बी द सेम, कोई भी आप ऑक्यूपाई कर सकता है. सो यहाँ पे हम इन इंडिविजुअल्स को कंप्लाई नहीं कर रहे, रादर ये जो ऑफिस है इसकी प्रेस्टीज, इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नॉट दिस इंडिविजुअल, राइट? कोई भी इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी अगर आपको कोई मैंडेट देगा, देन यू हैव टू कंप्लाई विद इट, राइट? तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेबल हो सकता है, दिस इज पोजीशन ऑफ कांस्टेबल. टैक्स कलेक्टर हो सकता है, अगर टैक्स कलेक्टर आपको नोटिस भेजता है, देन यू हैव टू कंप्लाई टू इट, यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स और यू हैव टू डिपॉजिट द इनकम टैक्स दैट इज ड्यू. कांस्टेबल अगर आपको रोकता है ऑन ट्रैफिक, then you have to comply to his direction. You have to show his your driving license and various documents to him, your own identity to that particular person, right? ऐसे ही कलेक्टर और IPS क्या है, अलग अलग क्या है, वो आम लोगों के बीच में क्या है, ऐसे ऑथोरिटी रिलेशंस होते हैं, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये जो people who are occupying this office, right, they have to behave in a rational objective manner, right? They should be rational and objective, right? These are the characteristics of typical bureaucracy. उनको rational होना चाहिए, objective होना चाहिए,
कोई भी यहाँ पे बैठ जाएगा, एवरीवन विल बी बिहेविंग इन द सेम मैनर, राइट। उनको इम्पार्शियल होना चाहिए और उनको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। बिकॉज क्या है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, खाली ऑफिस एग्जिस्ट करता है एंड यू आर जस्ट ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस, राइट। आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बंदा बैठे, सबका बिहेवियर सेम होना चाहिए, राइट। सबको रैशनल वे में एक्ट करना है, सबको ऑब्जेक्टिव वे में एक्ट करना है, राइट। बिकॉज क्या है, कोई भी यहाँ पे बैठे तो लोगों को क्या अपियर होना चाहिए, इट इज दिस ऑफिस विच इज एक्टिंग, राइट, एंड दिस ऑफिस विल एक्ट इन द सेम मैनर irrespective of any individual which is occupying that office, and we are making sure that person who is occupying that office, he is occupying it on the basis of competence, and that is why he will be manifesting the appropriate skills or requirements of the job, right। impartial होना चाहिए, neutral होना चाहिए, rational होना चाहिए, objective होना चाहिए, plus these are all faceless, these offices are faceless। IAS is interacting with IPS, not Mr. XYZ is interacting with Mr. ABC, right? IAS is interacting with the people, so it is not that individual or Mr. ABC is interacting with the people of the district, right? So it is the office that is interacting. तो office की जो requirements हैं, जो वेरियस वैल्यूज होनी चाहिए जॉब पे, जो आपको काफ़ी जो वेरियस कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी है, बिकॉज आपका कॉम्पिटेंस के बेसिस पे योर स्किल्स आर बीइंग मैच्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट जॉब। और वो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उस ऑफिस की, राइट, यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी इम्पार्शियल while performing your duties, right? Because essentially it is this office which is doing this duty and not the individual, because he is just a vehicle. This individual just a vehicle for carrying out official duties, right? So these are faceless मतलब कोई भी बैठेगा, it does not matter कि you have to give face to office, any person will be occupying this office, since they are selected on the basis of their competence, they will be manifesting the same job, the same behavior, right? So they should be faceless, right? So this is how it is, this is legal rational authority, right? Why is it rational? रैशनल एक तो हमने देखा कि रैशनल और ऑब्जेक्टिव होंगे, इम्पार्शियल होंगे, न्यूट्रल होंगे, राइट। प्लस हम देखेंगे कि आप जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हो यहाँ पे, राइट, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, राइट, रीजन के बेसिस पे होना चाहिए एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस और वैल्यूज, राइट। बिकॉज इमोशंस क्या है, रीजन से किसे क्या आएगा कि ऑब्जेक्टिविटी आएगी। अगर लोग रीजन अप्लाई करते हैं, एवरीवन विल बी कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, राइट। वेयर एज इमोशंस क्या, हर एक के इमोशंस अलग अलग होंगे, हर एक की वैल्यूज अलग अलग होंगी। यहाँ पे क्या आपको फैक्ट्स के बेसिस पे करना है, राइट। एवरीवन विल बी मैनिफेस्टिंग द सेम बिहेवियर एज पर फैक्ट्स, ना कि वैल्यूज के बेसिस पे। वैल्यूज मतलब आप किस चीज को वैल्यूएबल कंसिडर करते हो, दोज बिकम्स योर वैल्यूज। इफ यू वांट, यू कंसिडर मनी एज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, तो करप्शन माइट बिकम वन ऑफ योर वैल्यू, राइट। अगर मनी एट ऑल कॉस्ट, अगर ये आपकी वैल्यू है, इसको आप सबसे वैल्यूएबल समझते हो, देन करप्शन विल बिकम वन ऑफ द वैल्यू, राइट। एंड इट विल, प्लस वैल्यूज जब आते हैं तो हर एक इंसान हर एक अलग अलग चीज़ों को वैल्यूएबल समझता है। तो वहाँ पे क्या है, हर एक इंसान की इन पोजीशंस में क्या है, अलग अलग वैल्यूज होंगी, अलग अलग बिहेवियर हो जाएगा। वेयरएज क्या होना चाहिए कि जो भी इस पर्सन पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये इसका जो बिहेवियर ऑफिस का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, राइट। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इमोशंस नहीं होने चाहिए, वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, रादर यू शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है ये ब्यूरोक्रेसी में। कोई भी करेगा, इट इज एज इफ दिस office is acting and this office is something which is non-human thing, and it will always be manifesting the same behavior irrespective of time and space, irrespective of the people that they are dealing with, right? So this is legal rational authority, ठीक है। प्लस लीगल रैशनल अथॉरिटी में क्या मीन्स एंड ओरिएंटेशन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मीन्स एंड ओरिएंटेशन होगा, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, लॉजिक, फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी, दीज आर योर मीन्स, and rules are also your means, because rules are there to facilitate your working, right? You have to work within the ambit of the rules or laws that are laid down for your office, right?
इससे क्या होगा, रूल क्या, हर कोई उस रूल के हिसाब से चलेगा तो सबका यूनिफॉर्म बिहेवियर होगा, ऑब्जेक्टिव बिहेवियर होगा। प्लस रूल्स आर देयर टू वीड आउट इनएफिशिएंसीज। रूल्स क्या, एसेंशियली रूल्स आर नॉट बैड। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो करप्शन को भी वीड आउट कर सकते हो, राइट। आपका बिहेवियर भी यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। सो रूल्स क्या है, दे आर बेसिकली देयर टू स्मूदन the work requirement, to facilitate you to do the job. So these are the means, and end is the task at hand. The task or aims or duties or roles or responsibilities by virtue of you being in this official position, right? ठीक है. So this is legal and this is rational, right? See, one more thing I want to talk about is, this is important. वेबर बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन पूरी सोसाइटी का हो चुका है, राइट। पूरी सोसाइटी में रैशनलाइजेशन फैल चुका है। तो एसेंशियली क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्परेरी सोसाइटीज आर मैनिफेस्टिंग रैशनल एक्शन। किनका मीन्स एंड ओरिएंटेशन है, रीजन के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं, राइट। प्रॉपर और एफिशिएंट मींस का यूज करके प्रैक्टिकल गोल्स अचीव करते हैं, राइट। नॉन इमोटिव हो चुके हैं, फैक्ट बेस्ड हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, राइट। प्रॉपर प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और डेलिब्रेशन के बाद दे टेक डिसीजंस, राइट। सो मोस्ट ऑफ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर लॉजिकल, मोर एंड मोर रैशनल, एंड दे आर बिकमिंग लेस एंड लेस इमोटिव इन द मॉडर्न सोसाइटीज, राइट। रैशनल एक्शन बढ़ चुका है। और ये रैशनल एक्शन क्या है, बेसिकली क्या है, ये रैशनल एक्शन पूरे सोसाइटी में क्या है, पेनिट्रेट कर गया है। तो पूरी सोसाइटी का रैशनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रैशनल। तो जो आपका वर्क है, इट इज, जैसे वर्क में क्या है, वेरियस पोजीशंस है, राइट। वर्क इज नथिंग बट, वर्क है क्या, वर्क इज, यहां पे क्या है, सी ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इट इज अ सिग्मा। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज different people who are occupying, for example, this is an organization, here there are different offices, different positions are there, different hierarchies are there, और ये क्या है, ऑथोरिटी रिलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी रिलेशंस, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट, विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रैशनल मैनर, जिसमें क्या है, डिफरेंट ऑफिसेज आर देयर, राइट। तो इन ऑफिसेज में जो इंडिविजुअल्स बैठे इन ऑफिसेज में, और इन ऑफिसेज को जो इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दे आर, अगर ये दे आर ऑल मैनिफेस्टिंग रैशनल एक्शन, राइट। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी क्या बोलोगे, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक ऐसी कलेक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या है, एट वर्क दे आर मैनिफेस्टिंग रैशनल एक्शन, राइट। अगर आप इन सब को देखोगे और इनको सबको कंबाइन करके के नाम दोगे तो उसको आप ब्यूरोक्रेसी दोगे, राइट। तो अगर आप वर्क को ऑर्गेनाइज करना है मॉडर्न सोसाइटीज में, अगर आपको वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, तो एसेंशियली ऑल दीज ऑफिसेज और पीपल हु आर देयर इन दीज ऑफिसेज क्या है, these are the members of this organization, right? They are the members of this organization, and all of these within an organization they are pursuing one common goal, aim or objective, right, a common task. For example, this is bureaucracy or governance or administration. तो यहाँ पे गोल क्या है, govern and administration of the people, right? Governance and administration of the people, governance और administration गोल है, right? So here is, this is a bureaucracy, right, an organization, ये आपका वर्क है। तो क्या है, ये वर्क को क्या है, आपने तोड़ दिया है डिफरेंट, दिस कॉम्प्लेक्स टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, और यहाँ पे क्या आपने वेरियस ऑफिसेज डिजाइन किए हैं, राइट। और आप जब इतनी बड़ी टास्क को क्रिएट कर रहे हो, राइट, बड़ी टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हो, और उसको पहले आपने छोटे छोटे टास्क में, स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया है, और हर एक टास्क के लिए एक ऑफिस क्रिएट किया गया है, हर एक ऑफिस पे एक इंडिविजुअल ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। नाउ जब आप इतने सारे लोगों को लेके चलते ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल ऑफ दिस पीपल दे आर मूविंग और वर्किंग इन अ मैनर कि दे आर पुशिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कॉमन गोल विद विच दिस पीपल आर वर्किंग इन यूनिसन विद ईच अदर, राइट। ठीक है, नाउ हाउ दे आर वर्किंग इन अ लीगल, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, राइट। प्लस
आप इतने सारे लोगों को क्या है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो एसेंशियली आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना पड़ेगा. यू हैव टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अमंग दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल जब यहाँ पे क्या कुछ अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट. कुछ लोग कमांड दे पाएंगे, दूसरे फॉलो कर पाएंगे, हिरार्की होगी, राइट. तो ये जो कमांड स्ट्रक्चर होगा, अथॉरिटी स्ट्रक्चर होगा, अथॉरिटी रिलेशंस बनेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट. इसी के बेसिस पे क्या है, कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब एक बंदा कमांड कर पाएगा, दूसरों फॉलो कर पाएंगे, राइट. और कुछ फीडबैक मैकेनिज्म होगा. तो दीज अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटी रिलेशंस के बेसिस पे क्या है, आपकी क्या है, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड है इन मॉडर्न टाइम्स. अथॉरिटी स्ट्रक्चर और अथॉरिटी रिलेशंस के बेसिस पे, राइट. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क है आपको देखने को मिलेगा. आपको क्या है, वर्क कैरी आउट करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन तो बनानी पड़ेगी. और अगर आपको वर्क मोस्ट एफिशिएंट वे में कैरी आउट करना है, अगर आपको एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइन, ऑन ब्यूरोक्रेसी. दैट इज, उसमें हिरार्की होना चाहिए, रूल्स के बेसिस पे काम करे, लीगल रैशनल मैनर में काम करे, रैशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो, फेसलेस हो, इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल हो. दीज आर द वेरियस बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लस यहाँ पे हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो, प्लस ब्यूरोक्रेसी एज बी वर्किंग एज पर स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट. अगर ये सारी फीचर्स के बेसिस पे क्या ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आपका एसेंशियली क्या है, इवन अगर आपके पास कंपनी भी है, आपकी कंपनी का गोल, एम और ऑब्जेक्टिव है, राइट, जिसकी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा उस काम को करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज यू आर ऑर्गेनाइजिंग पीपल, different people who are moving towards a common goal in order to pursue the common objectives, right. तो आपको क्या, ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको तोड़ना पड़ेगा. तो आपको वेरियस ऑफिसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट. और क्या है, ये जब इतने सारे लोगों को आप एक कॉमन गोल, कॉमन एम की तरफ वो क्या है, ड्राइव कर रहे हो, तो क्या है, आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे. तो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज डिफरेंट पीपल हैविंग कॉमन गोल, राइट, वर्किंग एज पर लीगल रैशनल रूल्स. और कमांड और कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या है, यू हैव टू जनरेट दिस अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स. एक अथॉरिटी कर सके, दूसरा उसको ओबे कर सके, राइट. तो यू हैव टू जनरेट अ सर्टेन हियरार्की. और क्या है, हर एक इस कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए आपको क्या है, छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटी छोटी स्मॉल टास्क में तोड़ना पड़ेगा. और हर एक टास्क के लिए इंडिविजुअल्स क्या है, डेजिग्नेट करने पड़ेंगे, ऑफिसेज डेजिग्नेट करने पड़ेंगे. तो गवर्नेंस क्या, बड़ी टास्क है, उसको तोड़ा गया आपने एजुकेशन, हेल्थ, होम अफेयर्स, डिफेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, राइट. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहे कहीं पे भी बनानी हो, राइट. तो रैशनल एक्शन पूरी सोसाइटी में फैल चुका है. तो अगर आपको इवन यूनिवर्सिटी को भी एडमिनिस्टर करना है, तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी. और वो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी. यूनिवर्सिटी में भी आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ना काफ़ी काम, राइट. एडमिनिस्ट्रेशन विंग हो गया, ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट सेल हो गया, राइट. तो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा आपको. लोगों, इतने सारे लोगों को क्या आप रिक्रूट कर रहे हो, इतने सारे स्टूडेंट्स को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको रैशनल और साइंटिफिक मैनर में क्या है, इसको अप्रोच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज दिस ब्यूरोक्रेसी. तो आप ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करोगे, और ये ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स अगर आप ब्यूरोक्रेटिक लाइंस पे कंडक्ट कर रहे हो, जो मैंने आपकी फीचर्स बताई, आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस फीचर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ, राइट. आई हैव टू टॉक अबाउट दिस फीचर्स इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट. ठीक है. तो ये यूनिवर्सिटी में भी ब्यूरोक्रेसी है, आप मिलिट्री में देखोगे तो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी एक कमांड और कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स है, अथॉरिटी रिलेशंस है, वर्क डिवाइडेड है, राइट. डिफरेंट ऑफिसेस क्रिएट किए गए हैं, वो डिफरेंट ऑफिसेस डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. हर एक बंदा रैशनल ऑब्जेक्टिव मैनर में काम कर रहा है, हर एक बंदे को लीगल बेसिस पे अथॉरिटी मिली है, और हर एक इंडिविजुअल लीगल रैशनल अथॉरिटी पे काम कर रहा है. स्टैंडर्डाइजेशन वर्क है, किसका क्या काम करना है, रूल्स क्या क्या है, ये क्लियर है, हियरार्की क्या क्या, ये क्लियर. तो यहाँ पे भी वर्क का ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में हो रहा है, राइट. इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज यहीं पे इसी के बेसिस पे क्या है, रैशनल और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट. और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जो टिपिकल स्टेट ब्यूरोक्रेसी, आप जो जिसको टिपिकल स्टेट ब्यूरोक्रेसी जानते हो, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी मानते हो, दैट इज दिस, राइट. और this industrial bureaucracy work is organized on the basis of industrial bureaucracy, right. So this has penetrated into all the spheres of life,
on all the spheres of work, because this is the most efficient form of organization of work. और इसी से organizations create होती है. Organization में authority structures और authority relations होते हैं command और कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट, कमांड और कंट्रोल के लिए. तभी ऑर्गेनाइजेशंस अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स पे क्या है हो सकती हैं. दे आर वर्किंग इन लीगल रैशनल मैनर, ऑल दिस फीचर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, राइट. सो दिस इज लीगल रैशनल अथॉरिटी. ठीक है, वेबर इन सब के बारे में बात करते हैं. तो ये रैशनलाइजेशन वो बोल रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है. तो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं होगी, मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी होगी, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट मोड ऑफ अथॉरिटी क्या होगा, दैट विल बी लीगल रैशनल अथॉरिटी. मॉडर्न सोसाइटी में करिस्मेटिक अथॉरिटी भी हो सकती है, राइट. तो मैंने बात की रूजवेल्ट की, राइट. और या फिर अब हम करंट कंटेम्परेरी एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे कि मोदी को जो उनके फॉलोअर्स हैं, राइट, उसके लिए एक नेगेटिव परजोरेटिव टर्म भी यूज की गई है, भक्स, राइट. बट ऑल दीज फॉलोअर्स दे हैव डीप बिलीफ एंड डीप फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ मोदी एज ए लीडर. सो दीज फॉलोअर्स दे कंसिडर हिम एज अ कैरिस्मेटिक लीडर, राइट. सेकंड, मोदी ही ऑक्यूपाइड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन on the basis of his competence by proving it to the masses by getting selected to this position. See, Advani made efforts throughout this life to occupy the position of PM, but he was not able to do it. So we could we say that Modi is more competent on the basis of parameters and criteria. He was able to occupy that position of PM, and he is working as per the laws and constitutions of the society. This position was created by laws and constitutions of the society, and is working as per the constitution, laws and rules, right. तो वो क्या है, लीगल रैशनल अथॉरिटी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. करिस्मेटिक अथॉरिटी भी क्या है, उनके फॉलोअर्स मानते हैं, राइट. तो वो करिस्मेटिक अथॉरिटी लिमिटेड है, जो उनके फॉलोअर्स है, जो डीप बिलीफ और फेथ रखते हैं, उन्हीं में सीमित है. वेयरएज लीगल रैशनल अथॉरिटीज, ऑल द इंडिया इज कंप्लाइंग विद दिस अथॉरिटी, राइट, बिकॉज दिस इज डिजाइंड एज पर रूल ऑफ लॉ, राइट. अब मोदी अगर 4 टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स के लिए पीएम बन चुके हैं, तीसरे और चौथे टर्म के लिए फॉर एग्जांपल ही इज स्टिल एबल टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन ऑफ पीएम एंड गेट इलेक्टेड एज ए पीएम, तो उनका आप देखोगे कि देयर विल बी सेट पैटर्न इन हाउ ही इज एडमिनिस्ट्रिंग और गवर्निंग द कंट्री, राइट. तो उनकी अथॉरिटी में क्या है, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो पहले और दूसरे टाइम पे जैसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे वर्क को कंडक्ट, वो भी कुछ ना कुछ उनका छाप देखने को मिलेगी. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी होगी. तो एक टाइम पे तीनों अथॉरिटी भी हो सकती हैं. मॉडर्न सोसाइटी में भी तीनों अथॉरिटी हो सकती हैं, लेकिन जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी होगा, मेन अगर हम देखेंगे सबसे डोमिनेंट वे में ऑर्गेनाइज्ड है पूरी सोसाइटी. वर्क क्या है, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रैशनल लाइंस, प्लस इट इज स्पिलिंग ओवर इनटू पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में द आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट, रीइफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे हम, ठीक है. So this is legal rational authority. So in next lecture I'll be talking about bureaucracy, the iron cage, as well as I'll also be covering the topic of value relevance and value neutrality. So in next lecture will be done with Weber as a thinker, right.